Hello everyone, welcome back. I just hope all of you are doing well. So if you guys can hear me, please reply on chat. Please acknowledge if you can hear me. Guys, if you can hear me, please reply on chat. Put a comment. Hello. Guys, can you hear me? Please put in chat if you guys can hear me so that we can start with the class. Okay. Okay, so let's start with it. So first of all, let me list down all the contents of the class, what we're going to cover today. So we'll be starting with the style attribute. So in style attribute, I think we had already discussed this thing about background color and colors we had already discussed. So we'll be discussing some more properties in style attribute. So like we'll be discussing some properties and the values for those properties. This will be the first task. Second, we need to go to CSS. We'll be doing introduction that will be based on styling purpose only. After that, we need to move on to different color formats in HTML. So one of the option can be you can directly write a color, like say if I'm asking you to put a red color in the text, so you can directly write red. Other options can be you can have a text for color format, like you can use RGB, or you can use some say HSL color format, and also you can use hex color format. So we have these three different options, right? So we'll be discussing all of them in today's class. We have more options as well, लेकिन वो हम discuss नहीं करेंगे because these are the most widely used और यही important है. So let's start with the style attribute. So style attribute में क्या होगा? सबसे पहले अगर आपको किसी भी मैंने कोई भी text दे दिया आपको, now you have to make some changes. You need to add some styles to that. So पहला option तो आपने देखा था background color. You can use background color there. This thing we already know. Second option can be you can add a text color. So for adding the text color, you have the property that is color. You just need to write color there. Then you can add, like you can align your text. So for that, we have the property text align. You can increase or decrease the font size. तो उसके लिए font size ये property होती है. उसके अलावा आप अपना font change कर सकते हो. मतलब जो आपको जो text दिख रहा है उसका font तो उसके लिए हमारा होता है font family. अब ये सभी क्या है, ये these are all properties, right? अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो you have to give a value कि किस मतलब क्या कलर आपको उसका चेंज करना है. So we'll be having a property, and for that property we'll be having some value. So it works like this. Style attribute आप जब भी यूज करोगे तो you have to write it like this. पहले आप style लिखोगे, style equals, then inside quotes you write your property here, and then you write your value, right? तो ये तो बात हो गई अगर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है. अब मेरे को अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो अगेन आई हैव टू डू द सेम थिंग, लाइक किसी भी एलिमेंट में जाके स्टाइल यूज करो, देन राइट हियर प्रॉपर्टी. सो दिस इज माय प्रॉपर्टी 1. इस प्रॉपर्टी के लिए कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सो दिस इज वैल्यू 1. अब आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो इसके जस्ट बाद यू कैन राइट द प्रॉपर्टी 2 एंड देन द वैल्यू 2.
तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं. So let's switch to the like sample HTML document. हम एक document लिख के देख लेते हैं, सारी चीजें add उसके अंदर करके देख लेते हैं. After that we can switch to the next topic. So the first thing would be, first of all I have to write this thing, doc type HTML. Then we have to write HTML. Maintain indentation also. Say the title is, we can write stylings. Then we have to close head. Now let's open our body here. This is my body tag, and now we need to add like some paragraph. Okay. Can you guys see the screen now? Is it visible now? Is it still not visible? Give me a minute. Can you see it now? Okay, okay, great. So let me just give you a brief overview again. So we had discussed these properties. The first one was background color. Second was color. Then third was we had text alignment that we had discussed. Like अगर मेरे को text align करना है in center or left or right, so we have to use the text align property. Then the next one is we had discussed about font size and font family. Right. तो यही चीज हम कोड में डाल के एक बार कोड रन करके देखते हैं these things are working or not. You guys can run them side by side so that things will become more clear. So let's say I'm using a paragraph here. In the paragraph, I have to use a style attribute. So I have to write style equals. Then inside quotes, I have to write my first property. Let's say I want to change the color of the paragraph. So I have to write color here. And then the value of the color, say I want to change it to red. So I just need to write red and then close the paragraph tag. Like this will be the opening tag. Then write the value that you want to put inside it. So let's say I have written this is a paragraph. And then you need to close it. After that, you can close your body tag also. Okay. So in the output, you can see this is a paragraph and it is in red color. Now let's use some other property. Background color you had already used. So let's use text align here. Text dash align. So let's align it to right side or let's align it to center. So you can see the text is in center now. And we had removed the color property. Let's also add the color property. So I just need to write color and then put a colon and write the color like red. So you can see I have used two properties here. First one is text align. I want to align my text to the center और मेरे को इसका color change करना है to red. तो अब ये text, this is a paragraph, ये align हो गया center में, उसका color change हो गया to red, right? इसके अलावा आप बाकी properties use कर सकते हो. जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाला font family, तो मैं इसमें कोई भी font family डाल सकती हूँ. तो you can see this one. Wait. I need to put a semicolon here because we need to close the previous one also. So the font family is changed. You can also change the font size.
तो से फॉन्ट साइज, अभी मेरा जो फॉन्ट साइज होगा वो 100% होगा। वी आर अज्यूमिंग कि अभी जो चीज है वो 100% है। अगर आप 100% से कम कर दोगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपने 100% से इंक्रीज किया तो साइज विल बी इंक्रीज। लाइक इफ आई डू 50% हियर, तो साइज बहुत छोटा हो गया इसका, राइट। अगर मैं इसको 100% कर 200% कर देती हूँ like this, so you can see the size has been increased to double, right? अगर मैंने इसको 500% कर दिया तो साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक दिस। तो ये थी ये 5 प्रॉपर्टीज, लाइक द मोस्ट वाइडली यूज्ड। आप ये मतलब कोई भी, अगर आप इवन एक बुक का पेज भी देखोगे ना, उसमें भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज यूज करनी है। अगर आपको किसी ने कोई वेब पेज दिया दैट यू हैव टू क्रिएट द सिमिलर वेब पेज, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये चीज सेंटर में ले जानी है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज 5 प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यूज। अब इसके अलावा आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो कि है बॉर्डर प्रॉपर्टी। से मेरे को, मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और उसका एक बॉर्डर सेट करना है। सो फॉर सेटिंग द बॉर्डर आई हैव दिस बॉर्डर प्रॉपर्टी हियर। तो इसके लिए पहले आपको उस बॉर्डर की वैल्यू देनी पड़ेगी। बॉर्डर की वैल्यूज आप हमेशा पिक्सेल्स में देते हो। सो लेट्स से आई हैव रिटन 2px। उसके बाद आपको बताना है कि बॉर्डर आपको किस टाइप का चाहिए। मतलब एक तो बॉर्डर ऐसे हो सकता है, राइट, दिस विल बी अ कॉन्टिन्यूअस बॉर्डर, मतलब जिसमें सॉलिड लाइंस होंगी। दूसरा आपका डैश्ड हो सकता है इस तरीके से, राइट। Guys, can you hear me? Am I not audible? Am I audible? Guys, please reply in chat if you guys can hear me. Okay. Okay, so let's set the border here. So I'm just removing this thing. So I have to write border and then set the border for this. So let's say I'm writing 2px, and then you have to type the type if you want it solid or dashed. So say I have written solid and then the color. So you can see I have removed all the properties from here. तो यहाँ से सब कुछ हट चुका है। जो आपने font family जो use की थी, text alignment किया था, size जो increase किया था, everything has been removed. और आपको अब सिर्फ इसका border दिख रहा है red color में, right? अगर मेरे को इसका border change करना है, say I want the border to be dashed, so I just need to remove solid from there and write dashed here, DASHED. You can also change the color. Say I want to change it to green, so you can change it like this. So I just hope this thing is clear. Now let's discuss about CSS. So CSS stands for Cascading Style Sheet. अब ये क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी HTML पेज बनाया, now you need to add some styles. तो एक तो ऑप्शन आपके पास है जो आप नॉर्मल स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, राइट। लेकिन कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब CSS क्या करता है, आपको ज्यादा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है कि आप अपने HTML पेज को स्टाइल कर पाओ। तो अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनलाइन, सेकेंड इज इंटरनल, and third is external. Now in inline what happens, जो आपने style attribute use किया that is actually called inline. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने एलिमेंट बनाया उसकी मैं अलग से मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, अलग से उसकी वैल्यू चेंज कर दी, सो दैट इज इनलाइन। सो लाइक ये कोई ऐसी चीज हो गई जो से हमने एलिमेंट के साथ यूज की है, राइट। अब इंटरनल क्या होता है कि अगर मेरे को पूरे पेज में से अगर 5 H1 मैंने यूज की है, 5 हेडिंग 1 यूज की है, मेरे को उन सबका से टेक्स्ट कलर चेंज करना है टू ब्लू। तो अब एक तो ऑप्शन है कि हर एलिमेंट पे जाके मैं अलग अलग कर दूं। वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी आई कैन यूज अ स्टाइल एलिमेंट। जैसे आपका एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, ऐसे एक स्टाइल एलिमेंट भी होते हैं। यू कैन यूज द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड योर हेड सेक्शन।
जो आपका हेड सेक्शन है उसके अंदर ये स्टाइल आप डाल दो। उस स्टाइल के अंदर आपको जो भी चेंजेस चाहिए, मतलब जितने भी H1 है से आपको उनका ब्लू कलर चाहिए, तो उस हेड सेक्शन में जाके स्टाइल एलिमेंट ओपन करके और उसके अंदर आप ये चीज डाल सकते हो। तो इंटरनल विल बी यूज्ड टू स्टाइल द एंटायर वेब पेज। ऐसे ही एक्सटर्नल में क्या होगा, अगर आपने एक्सटर्नल यूज किया तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आपने कोई अलग से एक स्टाइल शीट बना दी, CSS स्टाइल शीट आपने क्रिएट कर दी और आप उसके थ्रू बहुत सारे वेब पेजेस को चेंज कर रहे हो, राइट। तो आप एक अलग से एक फाइल बना सकते हो, उसमें आपने सारी चीजें सेव कर दी कि मेरे को बैकग्राउंड कलर से रेड चाहिए, टेक्स्ट कलर इन चीजों का मेरे को ये चाहिए, और ये हर वेब पेज में सेम चीजें अप्लाई हो जानी चाहिए। सो फॉर दैट वी यूज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल में आप क्या करोगे, एक्सटर्नल में यू विल बी स्टाइलिंग मल्टीपल वेब पेजेस, राइट। तो एक बार एक एक करके इनका कोड देख लेते हैं। इनलाइन वी ऑलरेडी नो, हमने अभी इनलाइन ही किया था। इंटरनल से वील स्टार्ट। Okay, so this is my head section here. I need to add the style element inside it. So this is how you add a style element. You have to open it and then you need to close it. In between that you have to put all the stylings कि अगर आपको body का background color change करना है, फिर आपको जो भी चीजें करनी है, you have to put it inside style. तो अब मेरे को जैसे से I want to change the background color of the body, so I just need to write this thing. इसके अंदर आप डाल दो कि मेरे को background color change करना है, to say this should be dash. Say I want it to be red. तो जैसे ही मैंने ये चीज लिखी, you can see the background color has been changed to red. तो आप इसको कैसे करते हो कि जो भी आपका हेड सेक्शन होगा उसमें आपने स्टाइल ओपन किया, स्टाइल के अंदर जो आपको जिस टैग के लिए स्टाइलिंग्स डालनी है, तो यू हैव टू राइट दैट टैग नेम. नाउ इनसाइड कर्ली ब्रेसेस यू नीड टू गिव योर प्रॉपर्टी एंड देन यू नीड टू गिव द वैल्यू फॉर दैट प्रॉपर्टी, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके टैग्स होंगे जिनके लिए आपको चीजें ऐड करनी है, यू कैन ऐड देम, और इन द एंड यू हैव टू क्लोज स्टाइल. And then you can just normally use the things that you want to inside your web page. तो say for example मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दिया and I'm writing okay. So अब मेरे को इसकी स्टाइलिंग चेंज करने से I want to change the color of this paragraph, so I have to write the tag name, that is key. Then I need to put the curly braces. Inside curly braces I need to give the properties and values. So say I want to align the text in the center, so I have to write text align and then the colon and write here center. जैसे मैंने किया, you can see the text here, it is in the center, right. तो ऐसे आप अगर आपको मान लो कुछ headings ऐड करनी है, so you can write, say I have written H1, this is your heading 1. अब मैंने फिर से H1 ही बना दिया and say this is my heading 2. तो अभी इनके लिए कोई स्टाइलिंग मैंने ऐड नहीं की. Now we need to add the style for this, so we need to go back to the style element and we need to write H1 here, and then inside curly braces again need to put the property and the value. So say I want to change the color this time, so I have changed the color to for example blue. So if you note down one thing here, मैंने यहाँ पे दो H1 यूज किए. अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते तो आपको ये चीज दोनों के साथ यूज करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक बार H1 डाला. H1 के लिए मतलब जितने भी आपकी पूरी बॉडी में जितने आपने H1 यूज किए उन सबका कलर ब्लू चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने और पैराग्राफ यहाँ पे यूज किए, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव एडेड वन मोर पैराग्राफ, तो अगर आप इसका भी देखोगे इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर में आ गई. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है इस बार, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अलग से कुछ स्टाइलिंग नहीं ली, बल्कि उनको डिफाइन कर दिया एक स्टाइल एलिमेंट के अंदर. तो जितने भी बार आपके पैराग्राफ्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अलाइन हो जाएंगे सेंटर में. जब भी आपकी H1 आएगी तो वो आपकी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ अगर H2 आ गई तो क्या होगा, हेडिंग 1 में तो ये चीज हुई. इफ से वी हैव हेडिंग 3 हियर,
सो यू कैन सी H2 इज द नॉर्मल हेडिंग इटसेल्फ। इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने कलर सिर्फ H1 का चेंज किया था। सो इट वर्क्स लाइक दिस। सो इनलाइन और इंटरनल आई थिंक ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल में क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, एक्सटर्नल में हम एक अलग से शीट बनाएंगे, उसमें जितने भी स्टाइलिंग्स वगैरह होंगी सब ऐड कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल आपको बॉडी की कोई स्टाइल चेंज करनी है, या फिर आपको से हेडिंग्स में जाके अगर आपको कुछ स्टाइल चेंज करनी है, जो भी चीजें आपको करनी है, स्टाइल शीट बना के उसके अंदर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS फाइल है, इसके अंदर मैंने 3 चीजें डाल दी। That your body's background should be white, and the color for the text color should be black, and the H1 font weight should be bold. This is another property here कि आपको मतलब font weight कैसा चाहिए, जैसे bold में आपका strong हो जाएगा। So let's make some changes in this. I'm changing it to blue. तो जब आप index.html फाइल पे जाओगे तो उसका बैकग्राउंड एक्चुअली ब्लू होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ये जो style.css फाइल जो आपने बनाई थी, इसको आपने हेड सेक्शन में जाके लिंक करा दिया। लिंक विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ पे आई कैन गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ओवर दिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक के अंदर आपने जो भी स्टाइल शीट जो आपने बनाई है वो आपको इंसर्ट करनी होती है। सो लिंक इज द टैग फॉर दिस एंड यू इंसर्ट इट लाइक दिस। दिस इज द ऑल्टरनेट थिंग। और ये जो आपका है, ये आपकी फाइल का नेम है जो आप href के अंदर डालोगे। दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। सो इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स गो टू style.css and say I want to change the color of the paragraph, like text color to say red, और हेडिंग के अंदर ओके लेट्स फर्स्ट मेक चेंजेस हियर। तो अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट एडिंग राइट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने जो भी टेक्स्ट डाला इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया टू रेड। व्हाई इज इट चेंज टू रेड? क्योंकि मैंने स्टाइल शीट में जाके इसका कलर चेंज किया था रेड, और उसके बाद मैंने ये स्टाइल शीट इंक्लूड करा ली अपने index.html फाइल के अंदर। तो ये तो हो गया कि आपने एक स्टाइल शीट बना के और उससे एक HTML फाइल आपने चेंज कर ली। नाउ व्हाट इफ यू वांट टू चेंज मल्टीपल वेब पेजेस? तो मैंने एक और HTML फाइल इंसर्ट की यहाँ पे एंड लेट्स ऐड टाइटल हियर। Sorry, we need to add the link also, so let's only add link. तो मैं ये सेम चीज कॉपी कर रही हूँ, जो लिंक जो हमें डालना था। तो इस जब आप new.html फाइल पे आए हो तो आप देख रहे हो कि जो बॉडी कलर है दैट इज अगेन ब्लू। अब जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ डाला, से आई हैव जस्ट एडेड हेलो इनसाइड इट एंड आई जस्ट क्लोज द पैराग्राफ, तो वो भी रेड कलर में है। तो हुआ क्या है कि सिर्फ एक हमने फाइल बनाई थी, जितने भी आपको स्टाइलिंग्स ऐड करनी थी उस फाइल के अंदर ऐड कर दी। उसके बाद जितनी भी आपकी HTML फाइल्स है उनके अंदर जाके उस फाइल को लिंक करा दिया यूजिंग द लिंक टैग, और उससे आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे index.html फाइल और new.html फाइल दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। सो आई जस्ट होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है वो सब। So we had discussed about the style attribute. स्टाइल एट्रीब्यूट में आपने मतलब वही चीज से इनलाइन स्टाइलिंग था आपका, CSS का एक इनलाइन स्टाइलिंग टाइप होता है जो आपका एक्चुअली स्टाइल एट्रीब्यूट है जो आप एलिमेंट्स में यूज कर रहे हो। उसके अलावा आपका इंटरनल था जिससे आप पूरे वेब पेज के एलिमेंट्स को हैंडल कर रहे थे। उसके अलावा एक एक्सटर्नल है जिससे आप काफी सारे वेब पेजेस हैंडल कर रहे थे बाय जस्ट क्रिएटिंग वन स्टाइल शीट। So I just hope till here everything is clear. Now we can move on to the next topic. So the next thing is about colors. तो कलर्स में आपका क्या होगा कि आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको टेक्स्ट का कलर रेड चेंज करना है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट रेड देयर। अगर आपको ब्लू चेंज करना है तो यू कैन राइट ब्लू। ऐसे अगर आपको ग्रीन ऐड करना है तो यू कैन राइट ग्रीन। ये तो आपके हो गए स्टैंडर्ड जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है।
नाउ से आई वांट टू यूज सम कोड, मैंने कोई कोड यूज किया और उसके बाद मेरा कलर रेड चेंज हो जाना चाहिए, फिर ब्लू चेंज हो जाना चाहिए, फिर ग्रीन, मतलब किसी भी कलर में ये चीजें चेंज हो जानी चाहिए. So for that we have three types. First one is RGB, that is called your red, green, blue format. Second thing is your hex. This is a hexadecimal code. And third thing is HSL. We'll be discussing HSL also. So let's start with RGB first. तो RGB में हमें क्या करना है? R is for red, G is for green, and B is for blue. तो इसमें हर कलर की एक रेंज होती है जो कि आपकी 0 से स्टार्ट होती है 255 तक जाती है. ठीक है, तो रेंज स्टार्ट होगी 0 to 255. तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है. सबसे पहले आपको लिखना होता है RGB. मतलब हम क्या करते हैं ना कि RGB में जितने भी कलर्स होंगे ना उनको मिक्स एंड मैच करके एक नया कलर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो अगर मेरे को अब रेड कलर बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू रेड की क्या हो सकती है? 255. तो मैं यहाँ पे 255 डाल दूंगी क्योंकि जो पहली वैल्यू होगी वो आपकी रेड की होगी. उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन और ब्लू का कितना काउंट होना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट वांट रेड हियर, तो ग्रीन और ब्लू को मैं 0 कर सकती हूँ, राइट? तो ये मैंने 0 कर दिया. रिमेंबर दिस इज फॉर रेड, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू. करना क्या है आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आरजीबी से और उससे आपको कोई भी नया कलर जनरेट करना है. तो अगर मेरे को रेड करना है तो रेड का तो ऑलरेडी ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू डाल सकती हूँ वहां पे, और ग्रीन और ब्लू को आप 0 ले सकते हो, राइट? ऐसे अगर मेरे को ग्रीन जनरेट करना है तो इस बार रेड की जरूरत नहीं है ग्रीन जनरेट करने के लिए, तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली यूज 0. अब ग्रीन की जगह पे उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 255, और ब्लू की जगह पे फिर से 0 रह जाएगा. ऐसे अगर मेरे को ब्लू जनरेट करना है तो आरजीबी आ जाएगा फिर से, और आपका रेड और ग्रीन 0 हो जाएगा, एंड योर ब्लू विल बी चेंज टू 255, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू अगेन. अब अगर वैल्यू 0 to 255 रेंज में है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पे 150 यूज नहीं कर सकते या फिर 145. मतलब ये कोई भी आपका रैंडम कलर कॉम्बिनेशन जरूर जनरेट करेगा, राइट? तो हम एक कोड लिख लेते हैं, कोड के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं. So I'm adding the title here. Say title is this is RGB color format. एक नॉर्मल एक पैराग्राफ बना लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं हम. तो अगर आपको कलर अगर डालना है तो you'll be adding a style attribute, right? तो से मैंने यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दिया. इसके अंदर मेरे को प्रॉपर्टी में आपको डालना है कलर, और इसकी वैल्यू इस बार हम डायरेक्टली रेड ग्रीन ब्लू ये नहीं लिखेंगे, विल बी यूजिंग द आरजीबी फॉर्मेट हियर. अब अगर मेरे को रेड कलर चाहिए तो विल बी राइटिंग फर्स्ट वैल्यूज फॉर रेड, तो मेरे को यहाँ पे 255 लिखना है, नेक्स्ट विल बी 0 एंड द नेक्स्ट विल बी 0 अगेन. इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा. नाउ लेट्स से आई हैव रिटन दिस इज अ रेड पैराग्राफ, and then you need to close the p tag. तो मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज नहीं किया, उसके बाद भी यू कैन सी द टेक्स्ट इज इन रेड कलर. तो ऐसे हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. नाउ लेट्स मेक द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. तो मैं सेम चीज को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, अभी तक दोनों रेड है, राइट? अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू ब्लू. तो क्या करना है, अगर ब्लू कन्वर्ट करना है तो ब्लू इज द लास्ट वैल्यू, तो आप लास्ट वाले 0 को जाके चेंज कर दो 255. जैसे आपने ये किया, दिस इज चेंज टू ब्लू कलर नाउ. तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज अ ब्लू पैराग्राफ. इसके बाद आप इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं. अब आपको एक ग्रीन में चेंज करना है, तो ग्रीन इज द मिडिल वैल्यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू चेंज द मिडिल 0 to 255, और जो बाकी जो दोनों होंगे वो 0 चेंज हो जाएंगे. सो से आई हैव डन दिस. या तो आप यू कैन सी द टेक्स्ट, दिस इज इन ग्रीन कलर. अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, लेट्स मेक सम कॉम्बिनेशन, लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम कॉम्बिनेशंस हियर. तो सी मैंने दो वैल्यूज को चेंज कर दिया 255. लास्ट की जो दो वैल्यूज, जब मैंने 255 चेंज किया तो लास्ट की दो वैल्यूज थी ग्रीन और ब्लू. उनके जब उनका हमने हाईएस्ट कलर लेवल लिया तो उनके कॉम्बिनेशन से हमें कलर मिला है स्काई ब्लू. सो यू कैन सी द आउटपुट, दैट इज दिस इज अ ब्लू पैराग्राफ, दिस इज दैट इज एक्चुअली स्काई ब्लू, राइट? अब इसी चीज को दोबारा ऐड करते हैं. पहला और आखिरी मैंने चेंज कर दिया 255, मिडिल इज स्टिल 0. तो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से वी गोट पिंक. सो यू कैन सी दिस इज अ ब्लू पैराग्राफ, यू हैव टू चेंज इट टू पिंक नाउ.
अब यहाँ आपको क्या करना है, से आई वांट टू चेंज द फर्स्ट टू वैल्यूज टू 255 और लास्ट को हम 0 रख लेते हैं यहाँ पे। As soon as you did this, यहाँ पे color change आपका हो गया to yellow. So you can see this is a yellow paragraph now. So I have changed the text to yellow. Now I want to change all the three values to 255. तो जब आपने सारी वैल्यूज 255 चेंज कर दी, so what happened? आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, why? क्योंकि जब आपने ये चीज की ना तो द कलर जनरेटेड इज एक्चुअली व्हाइट, तो व्हाइट पे आपको व्हाइट दिख ही नहीं रहा, राइट? तो इस मतलब ये चीजें आपकी ऐसी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यू से जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक और होती है ब्लैक के लिए, जो कि आपको ऐड करना है लाइक दिस। इसमें आपकी तीनों चीजें 0 हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है जब आप आरजीबी में तीनों वैल्यूज को 0 रखोगे। सो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, मतलब ये आप मोस्टली यूज कर रहे होगे ये सारे कलर्स। इसके अलावा से अगर मेरे को कोई रैंडम कॉम्बिनेशन जनरेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने वही पैराग्राफ फिर से ऐड कर दिया और इसे आई वांट टू जनरेट अ रैंडम कलर। सो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू से 34 लिख दिया और लास्ट वैल्यू को 25 डाल दिया। तो दिस इज सम रैंडम कलर, मेरे को भी नहीं पता था ये कलर जनरेट होगा। आई हैव जस्ट टेकन रैंडम वैल्यूज हियर, राइट? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कलर फॉर्मेट, दैट इज द आरजीबी। तो अब हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज योर हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आरजीबी में आपके पास था कि इसके अंदर आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू आपको डालने थे, ऐसे हेक्साडेसिमल में एज अ नेम इज सजेस्टिंग हेक्सा मीन 6, तो यहाँ पे 6 डिजिट्स होंगी। आपका हेक्साडेसिमल कोड जब भी स्टार्ट होगा एक हैशटैग से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा, से आपने आर डाल दिया, दिस इज फॉर रेड, पहली 2 डिजिट्स आर लाइक प्रिजर्व फॉर द रेड कलर, नेक्स्ट 2 आर फॉर ग्रीन एंड द लास्ट 2 आर फॉर ब्लू। सेम ही फॉर्मेट है, बस यहाँ पे 6 डिजिट्स है, यहाँ पे आपने सिर्फ 3 डिजिट्स यूज की थी। अब जैसे आप यहाँ पे 255 और 0 यूज कर रहे थे, हियर विल बी यूजिंग एफ एंड 0, दीज टू थिंग्स, राइट? तो अगर मेरे को रेड जनरेट करना है, जब आपको इसमें रेड जनरेट करना था तो व्हाट यू वर डूइंग, वी वर जस्ट सिंपली डूइंग 255, 0, 0। तो अगर आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू अगर रेड जनरेट करना है तो पहली 2 वैल्यूज को एफ चेंज कर दोगे, राइट? और जो लास्ट की वैल्यूज उनको फिर से 0 छोड़ दो, लाइक दिस, और इसके आगे एक हैशटैग लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका रेड कलर जनरेट हो गया। 2 बार एफ क्यों यूज किया, क्योंकि पहली 2 डिजिट्स रिजर्व है रेड कलर के लिए। अगर आपको ये ग्रीन चेंज करना है तो क्या करोगे, पहली 2 डिजिट्स और लास्ट की 2 डिजिट, मतलब जो रेड और ब्लू की जो डिजिट्स है उनको आप 0 रख लो, बाकी की जो बीच की जो 2 है उनको आप एफ कर दो। सो दिस विल बी 0, 0, एफ, एफ, 0, 0। सो दिस इज फॉर ग्रीन। Similarly, you can do 0, 0, 0, 0, FF, and this is for blue, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो आपके ब्लू के लिए है। तो यहाँ पे जो आपकी रेंज होती है वो 0 to 255 ना होके F और 0 होती है, मतलब आपको लाइक यू, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे FF ही डालोगे, आप ऐसे भी डाल सकते हो F0, लेकिन कोई डिफरेंट कलर बन जाएगा, रेड नहीं बनेगा उस टाइम पे, राइट? तो एक बार इसको भी कोड में लिख के देख लेते हैं, वी कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है ऑल्सो। ओके, so I'm adding the title here, that will be hex color code. So I have just written hex here. You can try it side by side. Okay, so एक बार फिर से पैराग्राफ्स ही इंसर्ट कर लेते हैं इसमें भी। So इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं, सिर्फ अगेन इट इज स्टाइल इक्वल्स कलर,
एंड दिस टाइम वी हैव टू ऐड द हेक्स कलर। तो आपको क्या डालना है यहाँ पे हैशटैग, उसके बाद आपको वो 6 डिजिट्स लिखनी है। सो से आई हैव रिटन FF0000 and then I have written this is a red paragraph and then you need to close this paragraph। तो यहाँ पे मैंने फिर से कोई स्टैंडर्ड कलर यूज नहीं किया, RGB यूज नहीं किया, बट स्टिल यू कैन सी द कलर टू बी इन रेड कलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड यूज किया जो कि रेड का है। FF0000 इज फॉर रेड। अब इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं। नाउ आई वांट टू चेंज इट टू ग्रीन, सो आई नीड टू ऐड FF इन बिटवीन। तो ये ग्रीन कन्वर्ट हो गया। इफ यू वांट टू चेंज इट टू ब्लू तो आपको लास्ट में FF ऐड करना पड़ेगा। So it is changed to blue. Now let's have a look over some other combinations. So मैंने इसको copy किया. So I'm taking the first 4 as F and the last one as 00. So if you remember जब हमने ये चीज की थी 255, 255, 0 in RGB, तो भी आपका येलो कलर जनरेट हो रहा था। अब मैंने क्या किया, 255 की जगह पे FF ले लिया, इसकी जगह फिर से FF एंड दिस इज 00। तो ये क्या हो गया, फिर से आपका येलो ही जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 255 255, तो उसको आप हेक्स में कैसे लिखोगे, दिस विल बी FF, दिस विल बी 00 एंड दिस विल बी FF अगेन। तो ये चीज एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। तो से आई वांट टू चेंज द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, तो इससे आपका पिंक जनरेट हो गया। ऐसे ही अगर आपको यू कैन चेंज द लास्ट 4, इससे आपका स्काई ब्लू जनरेट हो गया। मतलब जो हमने पहले डिस्कस की थी सेम चीजें हैं, बस इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया इस बार। Now what we can do, we can change all of them to zeros. So if you remember black के लिए RGB में क्या था, 000। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या करोगे, इस 0 को आप चेंज करोगे, दिस विल बी 00 अगेन एंड दिस विल बी 00 अगेन। इसके आगे आपको एक हैशटैग यूज करना है, दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट डन, और कलर आपका ब्लैक चेंज हो गया। अगर आपको व्हाइट चेंज करना है तो क्या करोगे, सभी को F ले लो, तो व्हाइट अगेन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, बिकॉज व्हाइट के ऊपर व्हाइट ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। अगर आपको रैंडम कॉम्बिनेशंस लेने हैं तो वी कैन ट्राई वन। आई एम चेंजिंग इट टू F, तो ये रैंडमली जनरेट हो गया सेम पिंक कलर, राइट। मैंने एक और को चेंज किया, अगर मैंने एक को रिमूव किया तो ये ब्लैक कन्वर्ट हो, सॉरी देयर इज वन डिजिट मिसिंग, या ओके। तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, कोई भी नया कलर जनरेट यहाँ से हो जाएगा। लाइक अब ये ब्लू कन्वर्ट हो गया, अगर मैंने इसको F चेंज किया तो भी ये ब्लू है। मतलब आप कुछ भी कलर चेंज करोगे, कोई ना कोई आपका नया डिफरेंट कलर आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द हेक्साडेसिमल कलर फॉर्मेट। नाउ द लास्ट वन वाज HSL। So in HSL, H stands for hue, S stands for saturation, and L stands for lightness. अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास अगेन 3 वैल्यूज होंगी, राइट। जो आपकी पहली वैल्यू, आपको आप इसको इस तरीके से लिखते हो, HSL, देन इनसाइड ब्रैकेट्स यू पुट द थिंग्स। जो आपकी पहली वैल्यू होगी दैट इज द ह्यू वैल्यू विल बी रिटन हियर, सैचुरेशन वैल्यू इसके बाद आएगी और लाइटनेस वैल्यू इसके बाद आएगी, राइट। तो अब ये एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली होते क्या है। H आपका क्या होता है, जो भी आप कलर यूज कर रहे हो उसका शेड आपका होता है H, मतलब जो पहली वैल्यू जो आप लिखोगे। तो इसमें आपके डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 0 अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट विल बी फॉर रेड, 120 अगर आपने यूज किया तो वो ग्रीन के लिए हो सकता है, ऐसे 240 अगर आपने यूज किया तो वो ब्लू के लिए हो सकता है। एंड अगर आपने, मतलब ये रेंज में आता है 0 to 360। ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे 120 ही यूज करोगे, 240 ही यूज करोगे, यू कैन यूज एनी नंबर इन द रेंज 0 to 360। 360 और 0 ये आपके दोनों सेम होते हैं, ये रेड के लिए ही होते हैं, राइट। तो ये इस रेंज में जाएंगे, राइट। मतलब आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वाज माय 0th पॉइंट, और ये वापस आके 360 पे मीट कर रहा है इसको। तो 0 और 360 आर ऑन द सेम पॉइंट, तो दोनों क्या होंगे आपके, रेड के लिए होंगे। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अगर मतलब पहला जो आप नंबर डालोगे HSL में, दैट विल बी योर कलर। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा शेड लेना चाहते हो, आप वो शेड ले सकते हो। अब जैसे आप कोई भी फोटो भी अगर क्लिक करते हो तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उस फोटो की लाइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, उसको डार्क या फिर लाइट कर सकते हो। सिमिलर उसका सैचुरेशन आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो सैचुरेशन में क्या होता है आपके पास, जो आपका सेकेंड नंबर जो होगा, दैट इज इन द परसेंटेज फॉर्मेट। तो अगर आप 0% वहां पे डाल देते हो तो दैट विल बी ग्रे कलर। वो आपका मतलब आप कोई भी कलर शेड यूज कर लो फर्स्ट नंबर की जगह पे, वो आपको ग्रे ही देगा अगर आपने उसका सैचुरेशन 0% कर दिया। बेशक वो आपका रेड कलर था, ग्रीन था, ब्लू था, लेकिन अगर सैचुरेशन अगर आपने 0 कर दिया तो आपको ग्रे देगा। 100% पे वो आपको आपका जो कलर आपने यूज किया है वो कलर आपको देगा, मतलब दैट विल बी फुल कलर। तो इसकी रेंज अगेन परसेंटेज है तो 0 to 100 ही जाएगी। तो इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपने 0 कर लिया, मतलब जैसे जैसे आप 100 के पास जाओगे, आपने जो कलर डाला है वो कलर आता जाएगा। आप 0 की साइड जाओगे तो वो ग्रेश कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जो लास्ट जो चीज थी आपकी वो थी L, दैट इज लाइटनेस। तो लाइटनेस अगेन सेम चीज है कि आपको लाइटनेस इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। मतलब अगर मैंने 0, ये भी परसेंटेज में होती है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि लाइटनेस आपकी 0 है, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको बोला कि लाइट 0 रखनी है, मतलब डार्क चीज होगी तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 पे आ जाते हैं कि मेरे को तो 100% लाइटनेस चाहिए, मतलब एकदम लाइट हो जाएगी वो चीज, तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको नेचुरल सा कुछ रखना है तो आप 50% वहां पे रख सकते हो, राइट। तो ऐसे हम लाइटनेस यूज करते हैं। तो जो तीन जो पैरामीटर जो थे इसके, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, HSL, then this is your H value, S value, this will be in percentage, L will be in percentage again। H2 होता है आपका, वो आपका चेंज होता है 0 to 360, एज आपका वही 0 to 100%, और एल भी आपका 0 to 100% होता है। तो इसको भी कोड में डाल के देख लेते हैं सारी चीजें, मतलब वैल्यूज को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। I'm adding the title here। टाइटल हम ले सकते हैं इसका HSL ही ले लेते हैं। Then you have to close it, maintain the indentations also। Okay, तो फिर से एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको स्टाइल डालनी है। तो स्टाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन लेट्स टेक कलर हियर। ये आपका हो जाएगा HSL। ब्रैकेट्स में आपको फिर से पहला नंबर आपका कलर होगा, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। सैचुरेशन से मैंने यहाँ पे ले लिया 100%, और लाइट हम ले लेते हैं 50%। इसके बाद मैंने डाल दिया दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, तो जैसे मैंने ये चीज लिखी, अगेन आपका पैराग्राफ रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, HSL में मैंने 0 वैल्यू डाली थी जो कि रेड के लिए थी। अगर आप 360 डालोगे तो भी रेड ही आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज किया 360 तो भी रेड कलर ही देगा। दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद मैंने सैचुरेशन बोला कि मेरे को तो पूरा रेड कलर ही चाहिए उसमें। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो वो ग्रे कन्वर्ट कर देगा, राइट। 50 मतलब मेरे को लाइटनेस बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कन्वर्ट नहीं करना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 50%। तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लेते हैं हम। नाउ लेट्स से आई वांट टू चेंज द वैल्यूज टू this is 360, let's change it to 120। ओके, सो इसमें सैचुरेशन 100 ही रखते हैं, लाइट 100 ही 50 ही रखते हैं अभी। तो ये आपका ग्रीन कलर हो गया। इसके बाद यू हैव let's change it to 240। So this is 100 again, this is 50, so this is your blue color।
और आपका लास्ट जो था 360 था, जो कि रेड कलर ही था। इसको 0 कर लेते हैं क्योंकि 360 पहले कर दिया था। ओके, नाउ अब इन्हीं सारी चीजों में हम सैचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके देखते हैं। एक ब्रेक दे देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं इसके बीच में, क्योंकि आउटपुट्स थोड़ा अलग से आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है, आई वांट टू डिक्रीज द सैचुरेशन, तो इसको 0 कर देते हैं एक बार के लिए। इसको भी 0 कर दिया, चारों को 0 कर देते हैं। लेट्स से दिस वन इज 0। तो यू कैन सी आपने कोई भी शेड यहाँ पे यूज किया है, कुछ भी आपने लाइटनेस की वैल्यू यूज की है, जैसे ही आपने इसका सैचुरेशन डिक्रीज किया टू 0%, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका ऑलरेडी, राइट। ऐसे अगर आप इसकी सैचुरेशन वैल्यू से 50% अगर कर देते हो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I'm just changing it to 50 now. Saturation value, I'm changing the saturation value only. इसके बीच में भी एक लाइन ब्रेक दे देते हैं BR टैग से। तो अभी आपको दिख रहा है कि कलर आपका रेड आ रहा है, ग्रीन ब्लू सब आ रहा है, बट दिस इज अ बिट ग्रेइश। आपको उतना ब्राइट नहीं दिख रहा जितना फर्स्ट में दिख रहा है। जो आपने 7th लाइन से जो आपने पैराग्राफ्स ऐड किए थे 7th 8th 9th और 10th में, उतना ब्राइट नहीं है, वो थोड़ा सा आपका ग्रेइश में जा रहा है, राइट। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, लाइटनेस वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। सो आई एम यूजिंग द BR टैग अगेन। इसके बाद यही पैराग्राफ्स में फिर से यूज करती हूँ। ओके, तो अब इसमें लाइटनेस की वैल्यू चेंज करते हैं, इसको 0 करके देखते हैं एक बार इन सबको। तो मैंने रेड ग्रीन ब्लू तीनों के लिए वैल्यू को 0 कर दिया। तो ये आपका ब्लैक कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइटनेस मतलब आपने बहुत डार्क इसको कर दिया। सो इन द आउटपुट यू कैन सी इट हियर, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज अ पैराग्राफ। चारों बार आपका कलर ब्लैक ही आ रहा है इसमें, राइट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस वैल्यू को आप 100 ले लो एक बार। तो इसके बाद हम कर लेते हैं इसको, दिस इज 100, दिस इज 100 एंड लास्ट 2 को भी कर लेते हैं 100। ये एक्चुअली वाइट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं है। ओके, तो ब्लैक के नीचे आपके पास ऑप्शंस तो आ गए, मतलब आपके पास स्पेस तो आ गया प्रॉपर जहां पे आपके पैराग्राफ्स प्रिंट होने थे, बट बिकॉज इट इज चेंज टू व्हाइट कलर, सो यू कांट सी एनीथिंग, राइट। अगेन वही चीज हो गई, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखेगा। सो दिस इज द केस। अब यहाँ पे भी आप रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एंटायर थिंग, क्योंकि वो काफी क्लमजी सा हो गया। सो इसमें कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 45 डाल दिया, सैचुरेशन वैल्यू 80 डाल दी और लाइटनेस से 60 डाल दिया। तो ये कोई कलर जनरेट हो गया, आई डोंट नो व्हाट कलर इज दिस, इट इज अ बिट येलोइश एंड ऑरेंज सा है, मतलब कोई डिफरेंट कलर जनरेट हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ रैंडम कॉम्बिनेशंस ही यहाँ पे डाले हैं, राइट। अब ये मैंने चेंज कर दिया 12, दिस वन इज से 30 एंड दिस इज 100। तो 100 हो गया, फिर से आपका व्हाइट कन्वर्ट हो गया ये तो आपको फिर से नहीं दिखेगा। इसको आप 10 कर लो, 10 मतलब ब्लैक के पास चला जाएगा, डार्क आपका हो गया ये, तो इस वजह से आपको फिर से ब्लैक ही दिख रहा है। आप इसको फिर 45 मैंने इसको कर दिया, तो ये फिर से एक डिफरेंट कलर जनरेट हो गया, वाइन कलर से लाइट थोड़ा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वाले में से मैंने वैल्यू चेंज कर दी 45, दिस वन इज से 90 एंड द लाइट वैल्यू से 50। तो ये आपका कलर जनरेट हो गया, जो पहले जो कलर जनरेट हुआ था। इसमें अगर आप चेक करोगे, अब जो आपकी जो पहले जो दो आउटपुट है, इसमें क्या है, दिस वन इज लाइक ये थोड़ा सा आपका ग्रेइश में जा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा वी कैन से जो आपका जो कलर है वो ज्यादा डार्क आ रहा है इस वाले में। तो इसमें वैल्यूज अगर आप देखोगे, आपने कलर का शेड तो 45 ही लिया है, बाई चांस हो गया ये 45 यहाँ पे।
कलर का शेड आपका सेम था, थोड़ा सा सैचुरेशन में डिफरेंस था, थोड़ा सा आपकी लाइट में डिफरेंस था, और इसने दोनों कलर्स को चेंज कर दिया, राइट। एक में क्या होगा, एक तो आपकी सैचुरेशन 80 वाले में थोड़ा ग्रे की तरफ चला गया, लाइट जब आपने इंक्रीज किया 80 वाले में तो वो थोड़ा व्हाइट की तरफ चला गया, राइट। इस वजह से ये चेंजेस इसके अंदर आ गए। यू कैन ऑल्सो ट्राई द लास्ट वन। बाकी ये वही चीज है, मतलब कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन, आई वाज जस्ट ट्राइंग सम रैंडम कॉम्बिनेशन हियर। तो यहाँ पे से आपने 180 ले लिया, तो ये आपका थोड़ा ब्लूइश आ गया शेड इसमें। So this is it, like this is how we can do these things. So I just hope all these things are clear to you. तो मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ सारी चीजें जो आज हमने कवर की हैं। So the first one was about the style attribute, उसमें different हमने properties और values देखी थी। So this was your inline also. इसके बाद आपने देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। और इसके बाद हमने देखे हैं कलर फॉर्मेट्स। कलर फॉर्मेट्स में पहला हमने देखा था RGB, जो कि रेड ग्रीन ब्लू बेस था। तो ये इसका फॉर्मेट ऐसे था, दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू। इसके बाद आपका दूसरा था हेक्स। हेक्स में आपने क्या लिखा था, एक हेक्साडेसिमल कोड आपको डालना था जिसमें 6 डिजिट्स होंगी। तो ये आपका इस फॉर्मेट में था, दिस इज RRGG एंड BB, राइट। उसके बाद आपका HSL था, ये आप ऐसे लिखते हो HSL एंड देन इनसाइड ब्रैकेट्स फर्स्ट थिंग इज शेड ऑफ कलर, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल नंबर। इसकी रेंज जो होगी आपकी, ये आपकी होगी 0 to 360। नेक्स्ट थिंग वाज योर सैचुरेशन परसेंटेज एंड नेक्स्ट थिंग वाज योर लाइट परसेंटेज। सो आई जस्ट होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो लेट मी have a look over the queries if you guys have any. Okay. So I just hope all these things are clear to you. And yeah, one more thing I want to tell you guys, if you want to learn Python, we have an amazing course for you. You can try that. Piyush Khandelwal, our mentor, is taking the course. He's an amazing mentor. तो आप एक बार वो try कर सकते हो. So this is all from my side. If you have any questions, you can ask in comments also. इसके बाद आप comments में पूछ सकते हो, या फिर हम next lecture में भी discuss कर सकते हैं उनको. So till then, bye bye. Take care. We'll be meeting the next week.